Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Oh, Yes, sir. okay. So we are discussing about threshold logic, है ना? So how to identify threshold functions. So in case of threshold functions, threshold function means the Boolean functions which can be realized using single threshold elements. Threshold functions should be unit function. We have discussed these things earlier. It must be unit. Unit means the variables should appear either in complemented form or in uncomplemented form. है ना? So if there exists an expression for the Boolean function either in sum of product form or product of sum form, POS or SOP form, in which the variables will appear either in complemented form or uncomplemented form, then the function is known as unit function. Next, we have also discussed from geometrical interpretation. Using geometrical interpretation, we have discussed that the function must be linearly separable. So if a Boolean function, it satisfies both the conditions, unit function and linearly separable, linear separability, then the function will be threshold function. Okay. Now, so suppose one Boolean function is given and we have to determine whether the function is unit function or not, threshold function or not. So first we will check whether the function is threshold or unit function or not. If it is unit function, then it may or may not be threshold function, and if it is not unit function, then the function is not threshold function. है ना? Every threshold function is unit, but every unit function may not be threshold function. ठीक है? So first we'll check this condition. If this condition is satisfied, then we'll proceed. We'll check linear separability, this property. And if the function is not unit, it means that the function is not threshold function. If it is unit function, then we'll check the second condition, linearly separable or not. Now for linearly separable, we have seen that we have studied the property that if the minimal two vertices, and we have discussed that how to find out minimal two vertices using K-map. Minimal two vertices, we have to identify minimal two vertices, and of course we have to identify we have discussed that these are for positive functions. The function must be positive in all of its variables. Then only actually these properties will hold true. Specifically, suppose if the function has two vertices, suppose A2, A1, A0, and another two vertex, suppose B2, B1, and B0, and if this relation holds, then we have discussed that suppose this is two vertex, then it will automatically imply that any vertex which is greater than or equal to this will also be two vertex. Similarly, false vertex, we have discussed in the previous class that if this vertex is a false vertex, then any vertex which is below this will be false vertex. And this property will hold true for positive function. Positive function means that the function should be positive in all of its variables. Okay? And we will find out minimal two vertices and maximal false vertices. ये पहला क्लास में देखिएगा, इसको हमने बताए थे हाउ टू फाइंड इट आउट, और जो चैप्टर का आपका पीडीएफ फाइल दिया था उसमें भी कुछ लिखा हुआ है ना? बट वो केमैप से जो निकालने का हमने बताए थे किताब में नहीं है, आप नोट्स को देखिएगा लास्ट क्लास का।
Okay, then what you have to do? We have to find out the weighted sum corresponding to minimal two vertices and weighted sum corresponding to maximal false vertices. So if the weighted sum corresponding to minimal two vertices are greater than or equal to in fact the minimal to weighted sum corresponding to maximal false vertices उससे ज्यादा होना चाहिए. In case of minimal two vertices, weighted sum of minimal two vertices should be greater than the weighted sum corresponding to maximal false vertices. अगर ऐसा होता है, then we will say the function is linearly separable. Otherwise, the function is not linearly separable and the function will not be threshold function. तो हम लोग इस प्रोसीजर को देखते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में वही ले रहा हूँ जो आपका पीडीएफ फाइल जो हमने भेजा था थ्रेशोल्ड उसमें है, लेकिन उसको देख लीजिए कैसे करना. एक एग्जाम्पल है उस पीडीएफ फाइल में, जो एग्जाम्पल है उसी को हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई whether the given function is threshold function or not. प्रोसेस को ठीक से समझिए. ये भी हमने बताए थे कि अगर 2 वेरिएबल है 3 वेरिएबल है तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे. बट इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब ज्यादा है तो वो फंक्शन वो काफी कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. सो वी विल डिस्कस the procedure how to find out how to identify a switching function is threshold function or not. So question is that determine whether this function में लिख रहा हूँ, suppose x1 x2 x3 x4 and this is suppose sum of min terms form, suppose 0 1 3 4 5 6 7 12 13. The question is that we have to determine whether this function is threshold function or not. ठीक है. We have discussed earlier that by solving 2 to the power 4, because this is 4 variable function, variables are x1 x2 x3 x4. So by solving 2 to the power 4 the 16 inequalities, you can determine if there exists feasible solution, if there exists the values of x1 x2 x3 x4 satisfying all 16 inequalities, then we can conclude that the function is threshold function. But that is a little bit lengthy process, so we'll try to find out whether we can determine whether the function is by using less number of inequalities, that is by solving less than 16 inequalities, है ना. So उस प्रोसेस को आज डिस्कस करते हैं. So first आपको क्या करना है, first you have to check whether this function is unit function or not. Since the function is given in sum of product form, है ना, तो इसको आप K-map से सिंप्लीफाई कर लीजिए. फर्स्ट सिंप्लीफाई यूजिंग K-map. पहला स्टेप यही है, सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन f यूजिंग K-map. सो पहला स्टेप ये है, and check whether this function is unit function or not. तो इसको सिंप्लीफाई आप करिए, इसको प्लॉट करिए. इसको सिंप्लीफाई करिए. K-map 4 वेरिएबल K-map में इसको आप प्लॉट करिए एंड सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट. मेरे ख्याल से आप लोग सब कर लेंगे इसको. यह K-map तो आप लोग को पता ही होगा, है ना. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. मैं आंसर लिख देता हूँ क्योंकि हमारा किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिए. इट विल बी लाइक दिस. टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मैं लिख देता हूँ. एंड दिस इजी स्टेप बट यू मस्ट वेरीफाई. इसको वेरीफाई जरूर करिएगा. You can easily obtain
this expression by simplifying the function using K-map. मेरे ख्याल से मैं ठीक ही लिखा, x1 बार x2 प्लस x1 बार x4 प्लस x2 x3 बार प्लस x1 बार x3 बार। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिकी स्टेप्स है ना, तो ठीक से सुनिए, अदरवाइज मिस्टेक कर देंगे आप लोग। तो फर्स्ट व्हाट यू टू डू, द फंक्शन विल बी थ्रेशोल्ड फंक्शन। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी यूनिट फंक्शन। तो देखिए यूनिट फंक्शन है क्या, तो एक एक वेरिएबल को देखिए। x1 appears only in अनकॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। देखिए जो एक्सप्रेशन इसमें x1 बार है, only x1 बार, there is no x1, है ना। So the function is negative in x1. What is about x2 variable? If you see the first term x2 uncomplimented form, second term में तो है नहीं, third term में भी uncomplimented form, fourth term में नहीं है। So x2 variable appears in uncomplimented form. It means the function is positive in x2, ठीक है। अब x3 को देखिए, variable x3, variable x3 appears in this expression only in complemented form, ठीक है। Then you check x4, you see that x4 appears in this expression only in uncomplimented form. तो यहाँ पे क्या है कि ये the function is either positive in xi or negative in xi for I equal to 1, 2, 3 and 4. That means the function is क्या है, यूनिट है, बोलिए yes or no? हेलो, अरे आप लोग कोई है कि चले गए सब? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो आप लोग यस सर, इतना, फंक्शन यूनिट है। हाँ तो बोलिए ना, थोड़ा बोलिए, तब तो पढ़ाने में ये हो गया। एक तो कम अटेंडेंस, आप लोग भी चुपचाप सो जाएंगे तो किसे होगा, कुछ कुछ बोलते रहिए, इंटरेक्टिव हो ना थोड़ा। तो द फंक्शन इज यूनिट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि लिनियरली सेपरेबल है कि नहीं देखना, यही पे एक ट्रिकी स्टेप है। एक्चुअली we will convert this function into positive function. So instead of f, we will construct one function, positive function corresponding to f. Let us call it phi. और इसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव कर लेंगे। x1 x2 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3. You see that we obtained phi from f as if by relabeling. जो x1 बार है उसको हमने रिप्लेस कर दिया x1 से, है ना। x2 तो ठीक है, x3 बार को we have relabeled it, रिप्लेस कर दिया x3 से, और x4 तो पॉजिटिव में। तो ये करने के बाद हमको we obtained phi from f. इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रॉपर्टीज है, जो पार्शियल ऑर्डर वाला, वो ट्रू पॉजिटिव फंक्शन के लिए द फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव इन ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स। तो हमारा एम क्या है कि लीनियर स्टेबिलिटी चेक करने के पहले हम एफ को यूज नहीं करेंगे, फाई को यूज करेंगे। एंड फ्रॉम हियर वी विल फाइंड आउट द वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू फाई। सबसे इसको निकालने की कोशिश करेंगे, वी फाई। और वी फाई से हम जो पहले प्रॉपर्टीज दो यूज किए थे, वो प्रॉपर्टीज यूज करके वी विल फाइंड आउट वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ, इसको निकालेंगे। तो बिकॉज एफ इज यूनिट, सो आफ्टर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट, ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए पॉजिटिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका अगर मिस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हम लोग मिनिमल टू वर्टेक्स फॉल्स वर्टेक्स का जो बताए थे, दैट इज ट्रू फॉर, उसमें बार बार हमने बोला है
कि ये प्रोसेस काम करेगा अगर फंक्शन पॉजिटिव हो। द फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव इन ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स। तो एफ से 5 वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, फिर गलत आंसर आ जाते हैं। तो इस स्टेप को ध्यान रखिएगा। तो अब हमसे एफ से फिलहाल फॉर द टाइमिंग हमसे एफ से कोई लेना देना नहीं है, हमको फाई को देखना है। ठीक है, अब फाई से हम निकालने का कोशिश करेंगे। विल चेक वेदर दिस फंक्शन फाई इज लिनियरली सेपरेबल और नॉट। और जब फाई का हो जाएगा तो वी फाई मीन्स थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू फाई, उसको निकालेंगे। एंड फ्रॉम देयर यूजिंग प्रॉपर्टीज we can easily construct, we can easily determine weight threshold vector corresponding to f, original function f। ठीक है, अब लिनियरली सेपरेबल यूनिट फंक्शन तो हो चुका है, अब लिनियरली सेपरेबल है कि नहीं वो हमको देखना है फॉर फाई, नॉट फॉर एफ। ओके, सो अब इस फंक्शन से आपको क्या करना है, मिनिमल ट्रू वर्टिसेस एंड मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस डिटरमाइन करना है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब देखिएगा उसमें है क्या करना है, फाई को आप केमेप में प्लॉट करिए। ठीक है, तो लेट अस प्लॉट। तो केमेप ड्रा करना है आपको। तो केमेप में हमको एफ, जो फंक्शन एफ है उसको प्लॉट करना है, x1 x2 x3 x4 0 0 0 1। चलो इसमें भी लाइन खींच देते हैं। फिर 1 1 1 0। ये बहुत ठीक ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए ठीक से। 0 0 0 1 1 1 1 0। तो देखिए जो पहला टर्म क्या है, x1 x2। तो x1 x2 मतलब क्या हो गया, ये x1 x2 फाई का फर्स्ट टर्म वो प्लॉट कर दिए। सेकंड टर्म क्या है, x1 x4। तो x1 1 होना चाहिए, x4 भी 1 होना चाहिए। तो ये दोनों में 1 है, और x4 भी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 4 सेल मिला करके x1 x4। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, x2 x3। अब x2 1 कहाँ पे है, x2 1 इधर है, और x3 1 ये है। ये जो क्वाड है ना, इसमें आपका वो टर्म आ जाएगा x1 एंड x2 x3। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म है x1 x3। तो x1 1 और x3 1। तो x1 1 x3 1 x3 1 इसमें मेरे ख्याल से इस तरह का प्लॉट होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मिनिमल ट्रू वर्टेक्स मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स निकालना है। तो इसमें हमने बताई थी कि आपको ये करना है कि इसका
मीन टर्म का जो है x1 x2 x3 x4 उसको डेसिमल में लिख लीजिए। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीन टर्म 0, दिस सेल कॉरेस्पॉन्डिंग मीन टर्म 0, नंबर को लिखिए। ये 1 के लिए है 2C, 4 5 6 7, फिर ये हो गया 8 9 10 11, इसको लिख के रखिए। फिर 12 13, इधर हो जाएगा 14 15। अब मिनिमल टू वर्टिसेस निकालना है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बताए थे कि पहले आप जैसे सिंप्लीफाई करते हैं उस टाइप के सेल बना लीजिए। तो देखिए इसमें तो एक तो क्वाड बनेगा, ये एक क्वाड, ठीक है। फिर एक तो क्वाड इस तरह से बन जाएगा, दूसरा 2 हो गया। फिर एक क्वाड ऐसे बनेगा, और एक क्वाड ऐसे बन जाएगा। देखिए ऑल वंस हैव बीन कवर्ड नाउ, ठीक है। अब एक एक क्वाड के लिए अब देखिए जो मिनिमल टू वर्टेक्स निकालना है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है उसमें मिनिमम कौन है? मिनिमल टू वर्टिसेस, तो मिनिमल टू वर्टिसेस बताइए क्या क्या होगा। अब देखिए क्वाड में देखिए इसमें क्या है, मिनिमम वाला कौन सा है? 12 13, ये तो 15 है, ठीक है, ये 15 है। तो मिनिमम क्या हुआ इसमें? 6 है ना। तो एक तो M6 मतलब मिन टर्म 6 एक मिनिमम है। 12 13 14 15 इसमें मिनिमम कौन सा है? 12 वाला है। फिर एक क्वाड है जो 9 11 13 15, इसमें से मिनिमम कौन सा है? 9 है। और एक क्वाड इसमें से 10 11 14 15, इसमें से मिनिमम कौन सा है? 10। तो एक एक क्वाड के लिए एक एक मिनिमल आपको मिलेगा, मिनिमल टू वर्सेस, ठीक है। तो डेसिम वर्टेक्स का लिखना चाहिए तो इसे लिखिए 6 मतलब हो गया 0 1 1 0। 12 का क्या हो गया, इसको डेसिम बाइनरी में कर दीजिए 1 1 0 0। 9 1 0 0 1, ये 9 हो गया। 10 1 0 1 0, ये 10 हो गया। तो ये जो 4 है इट हैज 4 मिनिमल टू वर्टिसेस, ये हम लोगों ने निकाल लिया। 6 12 9 10, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस। तो भी सिमिलर टाइप का आपको करना है, इसमें जो वी विल कंसंट्रेट ऑन दी सेल्स कंटेनिंग जीरोज। तो ये जो सेल ब्लैंक है इसमें 0 है, ये हो गया। अब इसमें भी सिंप्लीफाई के लिए वी हैव टू कंसीडर 0 सेल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे? एक तो क्वाड ए बन जाएगा, ये ऊपर वाला फर्स्ट रो में जो 0 है, ठीक है। एक क्वाड आप इसे बना दीजिए, और ये जो 0 है ये तो क्वाड नहीं बन रहा है, लेकिन ठीक है पेयर बना दीजिए इसके साथ इसका। तो 3 इसमें देखिए हुआ, 2 क्वाड है और एक पेयर है। तो हमको निकालना है मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस, मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस। तो मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस क्या क्या होगा? इसमें हमको जो जो क्वाड है उसमें देखिए जो नंबर्स लिखा है उसका जो मैक्सिमम वाला हमको लेना है। तो पहले क्या है 0 1 2 3, तो मैक्सिमम क्या हुआ 3, है ना। सो 3 मतलब 0 0 1 1, सो दिस इज वन मिनिमल टू फॉल्स मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स।
फिर जो क्वाड है जिसमें नंबर लिखो 4501, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 5 है। 5 मीन्स 0 1 0 1, ये हो गया। और जो पेयर है 8 और 0, इसमें से मैक्सिमम क्या है? 8 है। सो 8 इज अनदर मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स 0 0। So for this function we have 4 maximal false vertices and 3 minimal false vertices. So by solving 12 inequalities, 4 into 3, 12 inequalities, you can determine whether the function is threshold function or not. So next what we have to do? We have to solve these inequalities. तो हम क्या करेंगे? weighted sum corresponding to minimal 2 vertices and weighted sum corresponding to maximal false vertex, उसको हम लिखेंगे। तो 2 vertex का जो weighted sum होगा वो ज्यादा होना चाहिए as compared to false vertices, weighted sum for false vertices। तो इसमें तो because this is for the variable function, so weight threshold vector for the function phi, let us call it v phi। तो weights, we are writing weights w1, w2, w3, w4 and threshold value is suppose t। ठीक है। So this is the weight threshold vector. Let us assume that weight threshold vector for function phi is like this। तो then minimal weighted sum हमको निकालना है for minimal 2 vertices। तो देखिए पहले क्या है? 0 1 1 0, तो weighted sum क्या हो जाएगा? weighted sum w2 plus w3, weighted sum corresponding to 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगा? w1 plus w2। तो इस तरह से हम ट्रू वर्टेक्स के लिए वेटेड सम लिखते हैं, मिनिमल 2 वर्टिसेस। तो उसको एक साइड में लिखते हैं और फॉल्स वर्टिस को दूसरी साइड में। अभी करता हूं, देखिए नीचे। तो एक एक करके लिखते हैं। तो पहला वाला क्या है? w2 plus w3, लेट मी राइट। तो देखिए वेटेड सम लिख दो w2 plus w3, ये जो पहला हम लोगों ने लिखा है उसके लिए मिनिमल 2 वर्टेक्स। सेकेंड मिनिमल 2 वर्टेक्स का वेटेड सम क्या हो जाएगा? w1 plus w2। वो है w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 plus w4 x4। क्योंकि यहाँ पे x3 x4 0 है, तो w1 x1 क्या होगा? 1, w2 x2 क्या होगा? w2 है ना। बाकी दोनों तो कंट्रीब्यूशन 0 है, तो w1 plus w2 हो गया। थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? w1 plus w4। फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा? w2 plus w3। एंड ये सारे है ना, they should be greater than the weighted sum corresponding to false vertices। तो false vertices का देखिए पहला वाला क्या है? 0 0 1 1, ये जो फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है। तो what will be the weighted sum? w3 plus w4। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? w2 plus w4। और लास्ट वन क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली w1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 12 इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 12 कैसे आ रहा है? जैसे पहला वाला है w2 plus w, इसको देखिए तो w2 plus w3 शुड बी ग्रेटर देन w3 plus w4, फर्स्ट इस साइड में जो पहला वाला। द सेम थिंग लेफ्ट हैंड साइड में वही w2 plus w3 रखिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, w2 plus w4 से बड़ा होना चाहिए, एंड w2 plus w3 मस्ट बी ग्रेटर देन w1 ऑल्सो। तो 3 इनइक्वालिटी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म के लिए आपको 3 इनइक्वालिटी मिलेगा। तो क्योंकि 4 है, 4 2 वर्टिसेस है, तो 12 इनइक्वालिटीज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। you have to check whether there exists W1 W2 W satisfying all these 12 inequalities। इसको एक एक करके लिखिए और इसको देखिए काटकुट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे W2 प्लस W3 इज ग्रेटर देन W3 प्लस W4, तो W3 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंडीशन क्या आया, W2 शुड बी ग्रेटर देन W4। उसी तरह से दूसरा देखिए W2 प्लस W3 इज ग्रेटर देन W2 प्लस W4, तो W2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना पड़ेगा। करने के बाद आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता, ये होगा। एक्चुअली मल्टीपल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्यूशन तो नहीं कह रहा, आप लोग देखिएगा। एक पॉसिबल सॉल्यूशन है W1 3, W2 और W4 को मान लीजिए आप ले लीजिए 2 और W4 को ले लीजिए आप 1। तो अब देखिए ऑल द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज फॉर दिस। ठीक है, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल सबको करना है, अब डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब एक का वैल्यू एक एस्यूम करके बाकी के वैल्यू आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो वेटेड सम का तो वैल्यू आ गया, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा कि एकदम देखिए थ्रेशोल्ड क्या होगा, देखिए पहले हम इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे इसका वैल्यू लिखता हूँ। तो W प्लस फॉर दिस वैल्यूज W2 प्लस W3 क्या हो जाएगा, ये 4 होगा। W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, ये शायद 5। W1 प्लस W4 ये शायद 4 हो रहा है, इसको लिख रहा हूँ। W2 प्लस W3 ये भी 4 है। कुछ गलत तो नहीं किया, W2 प्लस W3 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए W2 प्लस W3 W2 प्लस W4 है, ठीक है। W1 प्लस W2 5 है, ठीक है। W1 प्लस W4 4 है, ठीक है। W2 प्लस W3 भी 4 है, ठीक है। और इधर देखिए राइट वाले में W3 प्लस W4 ये 3 है। W2 प्लस W4 ये भी 3 है। W1 दैट इज 3। तो थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो वेटेड सम है corresponding to maximal vertices that is 3, and weighted sum corresponding to minimal 2 vertices they actually 4 5 4 4। इसका मतलब थ्रेशोल्ड मस्ट लाई बिटवीन, वो 3 से ज्यादा होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए, है ना। सो यू कैन चूज T, T should be between 3 and 4। ठीक है, तो जैसे हम इसको 3 and 4 का जस्ट बीच में मान लीजिए 7/2 3.5 7/2 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो it means that the function is the function phi that is linearly separable because solution exists। ठीक है, and weight threshold vector corresponding to phi उसको मैं लिखता हूँ। v phi क्या हो गया, तो v phi निकाल लिख लीजिए। so weight threshold vector for phi function phi W1 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 W2 2 W3 2 a W4 एंड इसका वैल्यू लिया हम लोगों ने 7/2। So we concluded that function phi is threshold function and the weight threshold vector corresponding to phi is this v phi equal to
आप देखिए हमको चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट वी एफ नॉट वी फाइव। ओरिजिनल फंक्शन हमारा एफ है, तो यहाँ से निकलेगा। तो देखिए जो एफ से फाइव का, तो दो वेरिएबल x1 एक कॉम्प्लीमेंट किया गया था और एक फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट किया गया था, वो थे x3। अब याद करिए, वी हैव ऑब्टेन्ड फाइव फ्रॉम एफ बाय रीलेबलिंग x बार बाई x एंड x3 बार बाई x3। तो वही प्रॉपर्टी, उसमें पहला जो प्रॉपर्टी था जो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वेट को हमको नेगेटिव कर देना है। तो 3w1 और x3 मतलब w3 को, तो दिस विल बी -3 2 -2 1। और थ्रेशोल्ड को एडजस्ट कैसे करना है, 7/2 -3 -2। वो जो थ्योरम पहले हम लोगों ने किया था ना, उसको आप थ्योरम को यूज किया गया। प्रॉपर्टी एक था कि जैसे एक वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर दिया हुआ है, कोई इनपुट का अगर कॉम्प्लीमेंट करे तो उसका वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर क्या होगा, तो उसका वेट को नेगेटिव करना है और t माइनस डब्ल्यू आई वेट मान लीजिए डब्ल्यू आई था, तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वेट को एडजस्ट करना -WI और थ्रेशोल्ड को भी एडजस्ट करना है t माइनस डब्ल्यू आई। वही हम लोगों ने की। यहाँ पे दो वेरिएबल का है तो दो बार उसको यूज किया गया। तो 3 को हम लोग नेगेटिव कर दिए, मतलब साइन को चेंज कर देना है, माइनस कर देना है, और 2 का -2 हो गया, और थ्रेशोल्ड में ये दोनों। सो वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ इट विल बी -3 2 -2 1। और ये देखिए ये कितना आ रहा है, ये -3/2 है। सो दिस इज द आंसर। तो व्हाट आंसर इज दैट द ओरिजिनल फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन एंड वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ इज दिस वन, जो हम लोगों ने अभी निकाले। ठीक है, तो प्रोसेस का मैं समराइज करता हूं। तो पहला क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई का एक एक्सप्रेशन निकालना, एक्सप्रेशन चाहिए, यूनिट फंक्शन है कि नहीं आपको टेस्ट करना है। अगर यूनिट फंक्शन है तो we cannot immediately say that it is threshold function. It may or may not be threshold function. अगर पहला स्टेप टेस्ट ही फेल हो गया, मतलब यूनिट फंक्शन नहीं है, तो we can immediately conclude the function is not threshold function because every threshold function must be unit function. अब मान लीजिए यूनिट वाला सेटिस्फाई हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको लीनियर सेपरेबिलिटी चेक करना है। तो उसके लिए अगर इस प्रोसेस से चले जैसे हम लोग कर रहे थे, मिनिमल टू वर्टेक्स मैक्सिमल फॉर वर्टेक्स का प्रॉपर्टी अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो फंक्शन को याद रखिए कि हमेशा पॉजिटिव फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ नहीं है, जो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसको भी आप हटा करके सबको पॉजिटिव कर दीजिए एंड कंस्ट्रक्ट वन न्यू फंक्शन फाई, नॉट ए ओरिजिनल फंक्शन नहीं, फाई, और उसको फाई मस्ट बी ए पॉजिटिव फंक्शन। तो वो जो पॉजिटिव फंक्शन, इसको के मैप से प्लॉट करना है। आप देखिए के मैप प्लॉट जो एफ का था, फाई का अलग अलग होगा, वो दूसरा फंक्शन था, अब फाई अलग हो चुका है। तो इसलिए के मैप को प्लॉट करना, ना कि ओरिजिनल जो एफ में ड्रा किया हो उसी में से आपने 1 0 करते रही तो गलत हो जाएगा। तो फाई को आप दोबारा प्लॉट करिए एंड फाइंड आउट मिनिमल टू वर्टिसेस एंड मैक्सिमम, आइडेंटिफाई करिए मिनिमल टू वर्टेक्स कितना है, मैक्सिमल फर्स्ट वर्टेक्स कितना है। फिर वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमल टू वर्टिसेस से लिखिए, वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस से लिखिए। और जो वेटेड सम टू वर्टिसेस का जो वेटेड सम आपने लिखा है, दे मस्ट बी ग्रेटर देन जो वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉल्स वर्टिसेस। आप उसको सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करिए, इनइक्वालिटी को लिखिए, तो आप देखेंगे तो बाय इंस्पेक्शन आप काफी कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर सॉल्यूशन होता है तो मल्टीपल ही होगा, कि इक्वलिटी है ही नहीं, ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन 5, तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट अगर सॉल्यूशन आए तो। और अगर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, कब कोई इनइक्वालिटी बाद x इज ग्रेटर देन 5, दूसरा इनइक्वालिटी बाद x इज लेस देन 5, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि कोई बात है कि 5 से बड़ा है और कोई बात है कि 4 से छोटा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो देखना है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है आ रहा है तो आप बताइए कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है
तो ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट, एक कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा। फिर उसमें से वेटेड सम ट्रू वर्टेक्स के लिए लिखिए जैसे हम लोगों ने लिखा, फॉल्स वर्टिसेस के लिए भी लिखिए। थ्रेशोल्ड शुड लाई इन बिटवीन, कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग केस में क्या था कि फॉल्स वर्टेक्स के लिए वेटेड सम 3 और ट्रू वर्टेक्स के लिए 4 था, एक केस में 5 था। तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा हो जाएगा तो ट्रू वर्टेक्स नहीं रहेगा वो। तो 3 और 4 का बीच में होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल मिड वे में ले लिया। वो आप कोई भी कुछ भी नॉट नेसेसरली कि आपको मिड में ही लेना है, आप 3.1 भी चूज कर सकते हैं, कोई या 3.9 भी चूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप फाई के लिए आपको वेटेड सम मतलब 8 थ्रेशोल्ड वेक्टर मिली है, लेकिन चाहिए क्या आपको एफ के लिए। तो आप जो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किए, तो प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। एंड फ्रॉम द वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर ऑफ फाई ट्राई टू फाइंड आउट द वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर फॉर द ओरिजिनल फंक्शन एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इसको जरूर देखिएगा। ये आपका किताब में जो हमने भेजा था आपको, स्लाइड स्लाइड नहीं, पीडीएफ फाइल, उसमें देखिए है। तो जो जी कॉपी के किताब में सॉल्व प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा ठीक से। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो, आप लोग है? यस सर। हम्म, आप ही है क्या? बाकी लोग कहाँ गया? आप लोग क्लास में हैं? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, तो मैं अभी 5 मिनट के ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, सुन लीजिए। ये सब किताब मिताब मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो मैं 5 मिनट के बाद एक आध सवाल कैसे करना है, जस्ट स्टेप्स हम सब बता देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको लगेगा कि शायद हो नहीं सकता है, लेकिन कैसे करना है हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जब ये करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का मैं ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट बाद मैं आता हूँ। ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। यस सर।
हेलो, हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, आई एम बैक। तो ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपका किताब में एक्सरसाइज में होंगे, एग्जाम्पल में नहीं है, एक आधा हम बता देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम हिंट्स दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, पहले ये है कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व अपने आप करिएगा, पढ़ने के बाद आप लोग कर लेंगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। तो पहले हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया था, मतलब डिस्कस किया था थ्रेशोल्ड फंक्शन का। तो आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ x1 x2 n वेरिएबल फंक्शन xn, इसका मान लीजिए कि वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर दिया हुआ है, vf इज दिस, w1 w2 है ना, up to wn, these are the weights and value of threshold t. So suppose weight threshold vector for function f is this one, then you have to find out what will be the weight threshold vector for the dual of this function। f dual लिख रहा हूँ, dual function का weight threshold vector क्या होगा, मतलब इसका भी weight, मतलब whether the dual function will be threshold function or not, and if it is, then you have to find out that v of f dual है ना। तो ड्यूअल फंक्शन का ये क्या है, ये निकाल, ये पहला क्वेश्चन है। यू कैन सॉल्व इट, वो जो आपने प्रॉपर्टी जगह पता है तो इजीली आप सॉल्व कर देंगे। इसमें से ड्यूअल फंक्शन और एफ का ड्यूअल फंक्शन कैसे निकालता है, एफ ड्यूअल कॉम्प्लीमेंट आप लोग किए होंगे, तो ड्यूअल ऐसे निकालते हैं कि फंक्शन का आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल, ये एक्चुअली रिलेशन है ड्यूअल फंक्शन के साथ इस फंक्शन का। अब देखिएगा, ड्यूअल निकालने का टाइम पे आप क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है कि फंक्शन के ड्यूअल लिखते हैं, है ना। जैसे मैं एक बता दूं, जैसे एक्स वाई है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मान लीजिए एफ इक्वल टू दिस, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का टाइम पे आप लोगों ने यूज किए होंगे। आप लोग क्या करते थे कि इसका सॉरी एक मिनट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या था, आपको याद होगा कि जैसे एक्स डॉट वाई है, तो ड्यूअल फंक्शन के क्या होते हैं, जो एंड है उसको और करना है, और को एंड करना है, वन को जीरो करना है, जीरो को वन करना है, यही ड्यूअल का होता है। तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई है तो इसका ड्यूअल होता है एक्स प्लस वाई, है ना। तो एक्स प्लस वाई आने के लिए आप क्या करना है कि आप एफ को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, एफ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम, because f is xy, it means x bar is, f bar is this, then complement each literal, complement each literal, तो क्या हो जाएगा, x and y, x plus y हो जाएगा, वही ड्यूअल है। तो ड्यूअल निकालने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए एक बार, और जो लिटरल है उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ एफ ड्यूअल, इसको यूज आपको करके आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर एफ का अगर आपको वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर दिया हुआ है, तो एफ बार का आप निकाल सकते हैं। एफ बार का क्या हो जाएगा, माइनस W1 माइनस W सब माइनस हो जाता है, माइनस टी, ये प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे।
फिर कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल, तो लिटरल का जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वेट जो है उसको माइनस कर देना है, मतलब उसको फिर से माइनस कर देना, माइनस माइनस W1 तो W1 हो जाएगा, ठीक है ना। और वेट को भी एडजस्ट करना है, T माइनस WI होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करके आप इसका निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा ठीक से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एफ का वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका डुअल का वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग, हमने तो हिंट्स दे दिया, बता दिया, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, ठीक है ना। और दोनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और रिलेशन पता है तो आप लोग कर लेंगे इजीली। तो पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2, इसको देखिए। You have to implement one half adder, ठीक है। Realize, question is that realize, है ना, ये half adder using two threshold elements. हाफ एडर याद होगा, हाफ एडर में क्या होता है, जैसे हाफ एडर इसका 2 इनपुट होता है, 2 आउटपुट होता है। 2 इनपुट मान लीजिए एक्स वाई है, और आउटपुट में क्या होगा, साम एंड कैरी। एक साम एस साम के लिए, और सी ए कैरी के लिए। तो 2 थ्रेशोल्ड एलिमेंट की वजह कि 2 आउटपुट है, साम जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड एलिमेंट, कैरी जनरेट करने के लिए दूसरा थ्रेशोल्ड एलिमेंट। तो 2 थ्रेशोल्ड एलिमेंट से आपको इसको रियलाइज करना है। अब साम का अगर आप देखें, इसका ट्रूथ टेबल साम और कैरी का एक्स वाई, साम एंड कैरी, चलिए इधर कैरी कर देते, इसके लिए ज्यादा आपको आसान होगा, साम। तो 0 0 में क्या होता है, ये दोनों 0 0 हो जाएगा। 0 1 ऐड करेंगे तो साम 1 कैरी 0, 1 0 में सेम चीज 0 1, जब 1 1 होगा तो 1 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। एक मिनट, इसको मैं तो ठीक से लिखता हूँ। वन वन मीन्स ऐड करेंगे तो 2, तो 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 साम 0। ये इसका ट्रूथ टेबल होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो सी विल बी एक्स वाई, ये आप लोग को पता भी होगा। एंड साम क्या होता है, एक्सक्लूसिव वर्ड हो जाता है, मतलब एक्स एक्सक्लूसिव वर्ड वाई। तो टेबल से भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो इफ रियलाइज सी, सी जनरेट करने एक थ्रेशोल्ड एलिमेंट यूज करना है, और एस के लिए दूसरा करना है। अब सी देखिए, दिस फंक्शन इज यूनिट फंक्शन, क्योंकि एक्स वाई है ना, इसमें देखिए आपका दोनों वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो सी को आप रियलाइज तक कर सकते हैं, सी इज यूनिट फंक्शन। तो सी का रियलाइजेशन बेसिकली एन गेट है, ये तो बहुत इजी है। तो एन गेट रियलाइज करने के लिए कैसे करेंगे आप, क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसमें मिनिमल टू वर्सेस मैक्सिमल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेथड से करिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है सब, तो फर्स्ट जो है रियलाइज सी, 2 स्टेप में हम रियलाइज करेंगे। तो पहले सी को रियलाइज किया जाए, कैरी को, ठीक है। फिर हम लोग एस को रियलाइज करेंगे। तो इसका फंक्शन तो बहुत ही सीधा है। तो एक्स वाई तो 0 0, तो आउटपुट सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए वो इनइक्वलिटी लिखिए। कौन सी इनइक्वलिटी, तो सी को मान लीजिए कि हम 2 वेरिएबल है, तो ए है थ्रेशोल्ड एलिमेंट, इसका 2 इनपुट है एक्स एंड वाई, ठीक है। और इसका वेट्स मान लीजिए W1 W2 है, थ्रेशोल्ड T है, और ए आउटपुट में सी मिलना चाहिए। तो इस एंट्री के वेटेड सम क्या है, 0।
और आउटपुट C0, तो वेटेड सम शुड बी लेस देन T। तो एक इनइक्वालिटी 0 1 के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट 0 होना चाहिए। तो वेटेड सम 0, सॉरी वेटेड सम इज W2 दिस शुड बी लेस देन T। 1 0 में भी आउटपुट 0 होता है, तो इसका वेटेड सम W1 इट शुड बी लेस देन T। और 1 1 के लिए आउटपुट 1 होता है, सो वेटेड सम इज नाउ W1 प्लस W2 इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू T, क्योंकि आउटपुट हमारा 1 है। ठीक है, तो ये चारों इनइक्वालिटी अगर आप सॉल्व करें तो देखिए थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए चूज कर लीजिए W1 इक्वल टू W2, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं और T को हाफ ले लेते हैं। नहीं सॉरी हाफ नहीं, क्या लेना है, 1.5, 3/2 ले लीजिए। 3/2। तो देखिए पहला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, 3/2 लिया T को। W2 इज लेस देन 1.5, हाँ ये भी ठीक है, सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई है, दोनों ऐड कर देंगे तो 2 होगा। देखिए चारों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया। तो C का रिलेशन बहुत इजी है, इस तरह चारों इनइक्वालिटी सॉल्व करके आप कर सकते हैं। तो C में क्या करना है, A वेट 1 है, A 1 है, एंड दिस इज 1.5 है ना, XY आपका C हो गया। तो C के रिलेशन बहुत ही कैरी के लिए इजी है। अब शाम के लिए देखिए, तो पहले तो देखिए शाम जो फंक्शन है वो यूनिट फंक्शन है कि नहीं, हाँ बताइए, यूनिट फंक्शन है? बोलिए। हेलो, ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, XY बार प्लस X बार Y। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई भी आपको सम SOP और PS फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जिसमें यूनिट हो, है ना, तो यूनिट फंक्शन नहीं है। एंड बिकॉज इट इज नॉट यूनिट, तो सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट यूज करके आप इसको एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो लेकिन इसको करना है, वो बताए कि 2 थ्रेशोल्ड वेरिएबल, तो क्या और ऑप्शन क्या हो सकता है। एक ऑप्शन ये है कि ये जो सम फंक्शन है, इंस्टेड ऑफ विल ट्राई टू एक्सप्रेस जो C है, C भी आपका एक वेरिएबल के तरह यूज करिए, है ना, और सम को एज ए फंक्शन ऑफ X Y एंड C एक्सप्रेस करने का यही इसका ट्रिक्स है। C को यूज करना है, जो C आपका डिराइव C रियलाइज आपने कर लिया है, नाउ यूज दैट C एज इनपुट टू द सेकंड थ्रेशोल्ड एलिमेंट, जो जिससे आप सम निकालना चाहते हैं। तो इसमें आप देखिए, अगर इस फंक्शन को आप थोड़ा ये करें तो S कैन बी रिटन इन दिस वे, X प्लस Y इंटू C बार। C इज द कैरी का कॉम्प्लीमेंट। जो कैरी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए XY का कॉम्प्लीमेंट मतलब X बार प्लस Y बार, ये दोनों का आप एंड कर दीजिए तो सीधा सीधा वो एक्सक्लूसिव बार ही आएगा। तो दिस इज द, ये जो फंक्शन है ना, दिस इज यूनिट फंक्शन, क्योंकि इसमें X appears in uncomplemented form, Y appears in uncomplemented form, C appears in complemented form. So this is unit function, है ना। so जब C रियलाइज करेंगे उसमें क्या करना है, S रियलाइज करना, यही यही क्लू है। आप X Y बार प्लस X बार Y को डायरेक्ट आप रियलाइज नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन रियलाइज दिस वन, X प्लस Y C बार, है ना। तो इसको लेके आपको चलना है। तो शाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका C है, ये जो हम लोग कह रहे थे, इसको एज ए इनपुट हम यूज करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट में X Y या C भी है, X Y
और यहां से हमारा साम निकलेगा, साम। और ये जो W1 W2 W3 एंड T सेकेंड एलिमेंट का ही आपको निकालना है, जैसे आप कर रहे थे, रियलाइज कर रहे थे। और इसमें भी 3 वेरिएबल है, आप डायरेक्ट यही मेथड यूज कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल मेथड। 3 में क्या है, 2 to the 3 8 inequalities होगा एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट, यू नीड नॉट गो फॉर द रिगोरस प्रोसीजर। वो 4 वेरिएबल के लिए ही करिएगा, 3 वेरिएबल तक इनइक्वालिटी डायरेक्ट सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू रियलाइज हाफ एडर यूजिंग 2 थ्रेशोल्ड एलिमेंट्स। तो कैरी इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साम क्या है कि एज इट इज सीधा सीधा आप करेंगे तो साम यूनिट फंक्शन नहीं है। तो यूनिट फंक्शन है तो थ्रेशोल्ड फंक्शन भी नहीं है। थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं है तो सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट में आप रियलाइज नहीं कर सकते। बट इफ यू यूज दैट सी कैरी आउटपुट, जो कैरी आपने जनरेट किया उसका इनपुट आप यूज करेंगे, तो इफ यू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन फॉर सम in terms of x, y and carry, input variables and carry, then it becomes unit function और वो थ्रेशोल्ड फंक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रियलाइज करना है। तो बेसिकली इसको अरेंज करने वाली बात है, वो करना है। तो एक इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड। एक और प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव टू रियलाइज ए फुल एडर सर्किट। जो हाफ एडर था, फुल एडर, फुल एडर सर्किट using 2 threshold elements। जो हाफ एडर का है तो फुल एडर में भी, फुल एडर में भी एक साम रियलाइज करने के लिए एक थ्रेशोल्ड चाहिए एंड कैरी के लिए एक और। तो इफ यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन फॉर कैरी इन केस ऑफ फुल एडर, ये क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, where x y z they are the inputs to the full adder, then carry output, the boolean expression for carry output is xy plus yz plus xz, and this is unit function and it will be threshold function also. So using single threshold element you can easily realize this one, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा। और साम में क्या होता है, साम एक्चुअली x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z, सॉरी x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव और z। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, दिस इज नॉट यूनिट फंक्शन, बट हियर ऑल्सो जिसे हम लोग हाफ एडर में किए थे उस तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं। x प्लस, इसको चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, दिस इंटू सी बार, सी बार मतलब यही सी बार है जो ऊपर लिखा गया है, प्लस एक्स वाई जेड। you can rewrite it, you can express it in this form। और ये जो फॉर्म है, इन दिस फॉर्म, दिस इज यूनिट फंक्शन, है ना। तो इसको रियलाइज करना है। तो यहाँ का क्लू यही है, डायरेक्ट आप करेंगे तो नहीं होगा, जैसे हाफ एडर में प्रॉब्लम आया था फुल एडर में भी आएगा। तो करने का तरीका ये है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z, you use the this expression, that is s equal to x plus y plus z into c bar plus x y z। और इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, आई होप हमने ठीक ही लिखा है ना। उसको कुछ नहीं है, आप उसको इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें मार्च हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, यू कैन इजीली डू दैट। तो इसका भी रियलाइज करने का तरीका ये होगा, यू हैव टू यूज वन थ्रेशोल्ड एलिमेंट, है ना। इसका इनपुट एक्स वाई जेड और ए जो है कैरी जनरेट करेगा सी। अब इतना पार्ट आप डायरेक्ट 8 इनइक्वालिटी सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला जो है 16 इनइक्वालिटी हो जाएगा। नाउ दिस सी विल बी इनपुट टू दिस थ्रेशोल्ड एलिमेंट और रिमेनिंग 3 तो यहाँ पे है एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे आप शाम को रियलाइज करिएगा, शाम, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो ये पूरे जो पीडीएफ फाइल हमने भेजा था, हमने मोटा मोटा सब डिस्कस कर दिए हैं।
एग्जाम्पल भी कर दिया, कुछ एक्सरसाइज ये भी। तो ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, आप लोग का टेस्ट भी आने वाला है तो इसको पूरा कंप्लीट करके पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट फाउट हो तो हमको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है, और आपका मिड सेम का एग्जाम के पहले एक और चैप्टर कम से कम खत्म करना है हमको, वो है फॉल डिटेक्शन, जिसका हमने कुछ स्लाइड्स आज भेजे हैं। वो स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में, कल जो हम क्लास करेंगे तो उसमें फॉल डिटेक्शन इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। फॉल डिटेक्शन एक तो टेम्पररी फॉल्ट्स, परमानेंट फॉल्ट्स होता है, टेम्पररी फॉल्ट्स हैजार्ड्स होते हैं, स्टैटिक हैजार्ड, डायनामिक हैजार्ड्स, उसके बारे में बताएंगे। और परमानेंट फॉल्ट स्टाकेट 0, स्टाकेट 1, कॉम्बिनेशनल सर्किट का भी बात कर रहा हूँ, है ना। और भी कुछ टाइप का फॉल्ट्स उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और उसका डिटेक्ट करने का कुछ मेथड्स है, फॉल्ट टेबल मेथड, पाथ सेंसिटाइजिंग मेथड, बुलियन डिफरेंस मेथड, और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉल्ट्स क्या होता है, डिटेक्टेबल फॉल्ट्स, कुछ अनडिटेक्टेबल फॉल्ट भी होता है सर्किट में। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए 2-3 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर। तो ये कॉन्सिक्वेंट जो है कल स्टार्ट करेंगे, आगे वीक में भी उसको खत्म करेंगे। तो स्लाइड को पढ़िए और ये थ्रेशोल्ड को पूरा पढ़ लीजिए। कम से कम ये है कि क्वेश्चन भी तो बनाना है, तो 2 चैप्टर तो अभी कंप्लीट करना ही है, थोड़ा लेट हो गया, और उसके आगे फिर देखते हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, गेटमेट हो गया है, आप पढ़ना थोड़ा शुरू कर दीजिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी है, लेकिन आप लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you please share this whiteboard notes also? ये तो रिकॉर्ड तो कर रहा है ना कोई तो एक्चुअली। सर ये रिकॉर्डिंग में whiteboard नहीं आ रहा। ये हमको भी पता नहीं एक्चुअली, तो हमने काफी कुछ तो हमने इरेज ही कर दिया ना, उस टाइम पे आप लोग बताए नहीं। आई वाज थिंकिंग कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे, जितना भी बचा कोई आई विल ट्राई टू शेयर, लेकिन हमने ज्यादा तो उसी टाइम पे आप लोग के सामने ही इरेज कर दिए हैं व्हाइट बोर्ड। आप लोग बोले भी नहीं कि ये दिखाई ना, हाँ आई वाज थिंकिंग कि ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। इसमें कोई बात नहीं, किताब में भी है कुछ तो है, आप लोग देखिएगा। अब नोट कराना चाहिए ना, या पहले बताना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखेंगे, जो हो गया उसको तो हम अनडू नहीं कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, उसमें ऑडियो आ रहा है, whiteboard नहीं आ रहा। तो ये अभी बताने का टाइम है, अब मैं इतना लिख के जा रहा हूँ। क्या किसी को दिखाई नहीं दिया क्या? हेलो, सर मतलब क्लास में दिखता है लेकिन रिकॉर्डिंग्स में नहीं दिखता है सर। ठीक है, क्लास में देखे तो उसमें तो नोट करेंगे ना, सब रिकॉर्ड में हो जाएगा, तो इसमें बैठे रहने की क्या जरूरत है? और जो प्रॉब्लम आप लोग को बताना, उस टाइम तो बोलता है वो, अब कोई जवाब ही नहीं देते आप लोग। 1-2 स्टूडेंट कुछ बोलते हैं, बाकी कोई समझ में भी नहीं आता आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे। आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आप लोगों को भी आपका काम करना चाहिए। तो जो होगी इसको तो हम हेल्प नहीं कर सकते, इसका आगे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज जो लिखा ओके सर, थैंक यू। शेयर अगर हो सकता है हम देखेंगे। एक्चुअली हमने ज्यादा तो इरेज कर दिया, आप लोग के सामने इरेज किए। ठीक ठीक है, वो कोई बात नहीं, आप इसको लेक्चर के साथ किताब में है, वो जो पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किताब में भी सॉल्यूशन किया हुआ है, देखिएगा। ठीक है, और फिर कोई तो हमको बताइएगा। सारी चीज किताब में है, ऐसा नहीं है किताब में है। सर लास्ट क्लास का भी व्हाइट बोर्ड अगर शेयर हो पाए तो कर दीजिएगा, जितना भी हो, तो अगर उससे हेल्प होगा कुछ तो। लास्ट का तो कुछ भी नहीं है, अच्छा ठीक है सर। कि हमको भी पता नहीं था हाउ टू यूज दिस व्हाइट बोर्ड मतलब ठीक से, तो हमें इरेज ही करते गए क्लास में। यू आर सपोज टू टेक ए नोट ऑफ इट ना, अरे यार उस टाइम पे बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके सर, वी विल आल्सो रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। लेकिन आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए कि टेस्ट भी है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।